forms of energy. Guys, you have studied mechanical energy in your 5th, 6th, 7th, 8th, so many times you have studied. Mechanical energy is the sum total of potential energy and kinetic energy. Everybody knows that. Potential energy is the energy possessed by the body at rest due to its position, size or shape. And kinetic energy is the energy possessed by the body due to its state of motion. So mechanical energy is the sum total of both. That is, it is the energy possessed by the body due to its state of rest or of motion. Now there are some forms of potential energy. One is called your gravitational potential energy. Second is your elastic potential energy. But nobody is going to ask you the definitions. Just you need to know what these are. Suppose some hammer is there. Okay, if I have to like strike a nail, now I'm raising the hammer. Now what work I am doing to raise the hammer from this position to this position at a height h, that work done is stored in the form of energy inside that hammer, and that energy is called your gravitational potential energy, because you are doing the work against the force of gravity, that is you are raising it against the force of gravity. Second is your elastic potential energy. Suppose some elastic body is there and you are applying external force and its shape or size gets deformed. Now you are doing some work to deform that body. That work is done on the body to deform it is stored in the form of energy inside it, and that energy is called your elastic potential energy. Next is the formula for gravitational potential energy at a height. Firstly, it is denoted by U, capital U is equals to mgh, because gravitational potential energy क्या होती है हमें पता है कि कितना वर्क डन हुआ. अब जैसे हैमर को हमने उठा के ऊपर रखा था, तो जो हमने वर्क डन किया इसको यहाँ से यहाँ उठाने के लिए वही इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया. तो वर्क डन कितना हुआ इसको उठाने में, दैट इज mgh. वी हैव डिराइव्ड इट अर्लियर ऑल्सो. अब एक और फॉर्मूला है, रिमेंबर दैट. सपोज अगर आपकी बॉडी पहले ही हाइट h1 पे है, उसके बाद इसने आपने इसको उठा के h2 पे कर दिया. सो व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना गेन हुआ, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh2. इनिशियल क्या हो गया, mgh1. दैट इज mg विल कम कॉमन, h2 माइनस h1. यहाँ पर आपका h2 हाइट क्या थी, बड़ी थी h1 से. इज इट क्लियर. उल्टा भी हो सकता है, मान लो आपने पहले ऊपर था, ऊपर से आप इसको नीचे लेके आ रहे हो, ठीक है, तो फिर आप फिर से क्या करोगे, mgh1 माइनस mgh2 हो जाएगा. उस टाइम पे आपकी h2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, h1 क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके. नेक्स्ट इज योर kinetic energy. Kinetic energy I have already told you, energy possessed by the body due to its state of motion. Examples, जैसे कोई भी बॉल आ रही है वो विंडो पेन को तोड़ देती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, kinetic energy. हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव करते हैं, मोशन में है तो kinetic energy. बुलेट जो गन के वो भी मोशन में है, इट हैज kinetic energy. Next is your expression for kinetic energy. It is given in your syllabus also, which is mentioned in the beginning, that you need to know the expression for derivation of the expression for kinetic energy. Now what they saying is कि kinetic energy किसी भी मूविंग बॉडी के किसके इक्वल होती है, कि वो कितना वर्क डन करती है बिफोर रेस्ट आने से पहले. मतलब जैसे कोई बॉडी है, अब जैसे कोई बॉल थी, उसने विंडो पेन तोड़ दी, तो विंडो पेन तोड़ने से मतलब वो वर्क करने से पहले, रेस्ट में आने से पहले उस बॉल ने कितना वर्क कर दिया, दैट इज कॉल्ड योर kinetic energy. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स डेरिवेशन. सपोज एक बॉडी है जिसका मास है m और वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रही है वो. अब हमने उस पर एक रिटार्डिंग मतलब ऑपोजिट उल्टा फोर्स लगाई और उसको हमने रेस्ट कर दिया, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दी, 0. और a है उसमें जो रिटार्डेशन आई है वो है हमारी a हमारी क्या है, रिटार्डेशन. और अब हमारी जो बॉडी है, लेकिन अब रेस्ट में आने से पहले जैसे हमने फोर्स लगा रहे थे, लेकिन फिर भी वो रेस्ट आते आते उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, s कवर कर लिया. तो अब अगर मैं रिटार्डिंग फोर्स की बात करूं तो F क्या होता है, ma. दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू रिटार्डेशन, क्योंकि मैं फोर्स कौन सी है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो दैट इज रिटार्डेशन मेरे पास कितनी है, a. सो m इंटू a इज योर ma. नाउ किनेटिक एनर्जी मैंने ऊपर बताया था कि वो क्या होता है कि कितना वर्क डन उसने कर लिया बिफोर रेस्ट में आने से पहले. तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, F इंटू एस, दैट इज रिटार्डिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. रिटार्डिंग फोर्स मेरे पास F थी, डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, S कवर कर लिया. तो अब मुझे क्या चाहिए, F की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी आ गई, दैट इज m में. अब F की वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन मुझे S की वैल्यू चाहिए. उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, टू कैलकुलेट S. मेरे पास एक हमने 3 डेरिवेशंस करी थी 9th स्टैंडर्ड में. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. मैं उसको यूज करने जा रहा हूँ.
देखो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 0, इनिशियल वो कितने से मूव कर रहा था v से, तो फाइनल v होती है वो हमारे पास 0, इनिशियल u होते हैं लेकिन u की वैल्यू मैंने कितनी ली है v ली है, तो वहां पर आ जाएगा v और 2 इंटू ए इंटू एस, ए होती है मेरी एक्सेलरेशन, मुझे पता था कि मेरी a है रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन उसकी नेगेटिव हो जाएगी दैट इज माइनस ए, तो a की जगह पे क्या आ गया माइनस ए आ गया, इधर माइनस वी स्क्वायर इधर माइनस 2s, माइनस माइनस कैंसिल, वी स्क्वायर इज टू 2s, अगर मुझे s चाहिए 2m मल्टीप्लाई हुआ इधर आके डिवाइड हो जाएगा दैट इज वी स्क्वायर बाई 2a। अब मुझे f की वैल्यू पता है ma है, s की वैल्यू ये पता है, दोनों वैल्यूज को क्या कर दूंगा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, a से a कैंसिल, क्या बच गया किनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वेरी इजी। मोमेंटम हमने 9th में पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज p इज इक्वल स्मॉल p इज इक्वल्स टू m इनटू v। अब मुझे पता है किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, मोमेंटम p का फॉर्मूला होता है m इनटू v। अगर मैं v की वैल्यू निकालूं, m मल्टीप्लाई हुआ इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज स्मॉल v इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय m। तो यहां पर मैं v की जगह पे p बाय m क्या कर दूंगा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब होल स्क्वायर था इसका तो होल स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल, क्या बच गया पी स्क्वायर इंटू 1 इज पी स्क्वायर, 2 इंटू एम इज 2m। तो एक मेरे पास किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया पी स्क्वायर बाई 2m। अब मैं पी का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 2m डिवाइड हुआ उधर जाके मल्टीप्लाई दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m किनेटिक एनर्जी। अगर मुझे पी निकालना है तो इसका क्या बन जाएगा बच्चे अंडर रूट बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा अंडर रूट दैट इज पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m किनेटिक एनर्जी हो जाएगा।